Hello friends, this is Santosh Kumar here, and today we are going to learn about some of the data visualization practice with which you can see how much and how many ways we can create our data visualization to make it more and more appealing to and presenting to our management. So here in this data you can see as an example movie gender. It is given here like comedy, thriller, documentary, romance, and against each movie gender it is given ticket sales here on each every month. And what commonly people do, they select this entire data and create their bar chart by simply going into this and do some little bit of formatting. But this kind of data, it is not so much of appealing to present to our management. So today we will create our data visualization by creating some, by using some various grid tips. So let's see it one by one. First, we will do it by using the data validation and index match function. So how we are going to use it? Just see here, step by step. First, in this cell, we will create our data validation. So for creating the data validation, just go in this data tab, and then after this, go in this function, and this here you will see this data validation. From this data validation, just select this option list, and where is our list? My list, it is here, and close it then. So after this, you can see we have created in this cell our data validation. So let's select for now any gender as an example to create our data with reference to that. एंड यहाँ पर हम लोग जो है इसको कुछ कलरिंग कर लेते हैं सेल में सो दैट इट विल बी क्लियर कि यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू है. आफ्टर दिस वी विल टेक द वैल्यू अगेंस्ट दिस जेंडर which is applicable for respective month January to December. For picking the value, we will use index match function. Index match function means we will select it, first ask for the array. Where is my array? My array is here. After this, it is asking for the row number. Row number means it is asking for the row in which the data needs to get selected. तो यहाँ पर हम लोग जो है match function select कर सकते हैं. Once we will select the match function, it will ask for the lookup value. My lookup value is here. इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं so that this cell will should not get changed. But my lookup is array is here. इसमें भी हम लोग कॉलम फिक्स कर लेते हैं so that my column should not get changed with the dragging of cell. यहाँ पर देखिए बी डॉलर के बी कॉलम के सामने हमने डॉलर से लगा के कॉलम को हमने फिक्स कर लिया है. देन what kind of match I want exact match. So with this we have completed the criteria for my selection of row function, and then I want column. So my column will get change as when I am dragging myself. So I will not put any value here and will keep it blank. And then let's close this. So you can see for the January month, for the gender documentary, it is picking the value 9118. Then let's drag it down. So it has selected all the values which is applicable for this gender. And if I'm going to change my gender here, it will pick the values from the row of that respective gender. So as of now, we have created our dynamic range of cells which is applicable for the respective gender. After this, we will create our data visualization. So basically, we will select this row as for my horizontal axis, and we will select this row for my vertical axis data, and then we will go in this insert function. यहाँ पर हम लोग जो है this we will create this bar chart by selecting this one 2D column, or let's put this bar graph below this my range. उसके बाद जो है let's do some formatting in this my bar graph chart so that it looks more appealing and better. तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं. don't want these lines. The bar graph
कलर आई वांट इन डिफरेंट कलर्स, तो उसके लिए हम लोग क्या है बार ग्राफ में सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करने के बाद दिस पॉपअप विंडो विल गेट ओपन। इसमें जो है हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देन वी विल select this one option vary colors by paint. So after selecting this one you can see the colors for every my bar has got changed. Then I don't want the borders for all these bar, तो उसके लिए हम लोग जो है नो लाइन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। और इसका विथ जो है लेट्स इंक्रीज द विथ ऑफ ईच बार, तो उसके लिए जो है गैप विथ हम लोग जो है यहाँ पर 219 है, इसको हम लोग कम कर देते हैं 100%। तो नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग लिटिल बिट मोर बेटर। उसके बाद जो है लेट्स यहाँ पर हम लोग जो है अपना डाटा लेवल ले लेते हैं, और डाटा लेवल लेके इसको हम लोग जो है लेट्स मेक इट बोल्ड, एंड ये एक्सेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो यू कैन सी नाउ इट इज लुकिंग मोर बेटर एंड क्लीन। और इसमें भी जो है हम लोग नो सेल कर देते हैं, यहाँ पर नो फिल चाहिए मेरे को इस बार चार्ट में, और कोई इसका बॉर्डर भी नहीं चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिक्स कर देते हैं सो दैट दी माई बार ग्राफ will not get changed with the change of this column। तो इसको हम लोग डोंट मूव और साइज सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और ग्रिड लाइंस, लेट्स रिमूव द ग्रिड लाइंस इन दिस एक्सेल शीट। So you can now see my data visualization chart is looking more appealing। इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, हाइड इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस कम कर देते हैं, दो कॉलम को हम लोग डिलीट मार देते हैं यहाँ पर। दैट्स एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन हियर बाय डूइंग मोर एंड मोर फॉर्मेटिंग। और इसको जो है हम लोग यहीं पे ले आते हैं। So now you can see with the changing of our my criteria, my bar graph will get changed, and the header of this chart is also getting changed as per my selection criteria. So this is how we can see the chart is my chart is getting dynamically getting changed as per my criteria. Now this is one of the option we have seen. Now for creating the bar chart with another option, let's go in this data once again, and now we will create our visualization by using another tip। तो उसके लिए हम लोग जो है now we will use this developer tab। If this developer tab it is not appearing in your Excel sheet, you can do one thing, you have to go in this option file button after, and once going in this file button you have to go in this quick access bar, and you have to select this all button, all commands। ऑल कमांड्स में जाने के बाद यू विल सी आपका डेवलपर टैब यहाँ पर शो हो रहा होगा, जिसको आप लोग ऐड करके यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। देन यू हैव टू अप्लाई ओके बटन। वंस यू विल डू दिस योर developer tab will appear here। Once your developer tab will get appear here, what you have to do, you have to select this developer and go on this insert button, and then select this combo। and once you will select this combo button, इस तरह का बटन अपीयर होगा। तो यहाँ पर भी व्हाट वी विल डू, इस पे हम लोग जो है राइट क्लिक करके इसका रेंज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज माय रेंज, माय रेंज इज हियर। इसको रेंज को हमने डिफाइन कर लिया है, एंड वी हैव टू फिक्स इट विद सम लिंक। तो लिंक हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं इसका, लेट्स से हियर। सो और लिंक हमने फिक्स किया है, तो उसके बाद लेट्स यहाँ पर लग रहा है कलरिंग जो है, लेट्स मेक इट ब्लैक। when I will select one, it will give the value 1। so इसको हम लोग जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ये बड़ा हो जाएगा। सो विद दिस ऑप्शन यू कैन सी ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर आ रहा है, और इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नाउ इट इज लुकिंग मोर बेटर। सो दिस इज अब कॉमेडी फैशन को हम लोग लाने के लिए
अगर जो भी क्राइटेरिया हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं थ्रिलर, तो माय सेकंड इट इज थ्रिलर, तो इट इज गेटिंग सेलेक्ट taking the value 2. If I am going to documentary, it is at my position 3, so it is taking the value 3. तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं, so that whatever the row is coming here, it will pick the respective gender here in this cell. तो इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे तो मेरा वेयर इज माई अरे इज हेयर, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। देन व्हाट इज माई रो नंबर, रो नंबर वी विल फिक्स इट हियर, वी विल टेक फ्रॉम दिस सेल, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। एंड व्हाट इज माई कॉलम, माई कॉलम सिर्फ यही रहेगा हमेशा, तो इसको हम लोग 1 कर लेते हैं। नाउ लेट्स क्लोज इट डाउन। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू, मैं इसको अपने कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहीं पे रख लेता हूँ इसको। बट बिफोर पुटिंग दिस, हम लोग अपना रेस्पेक्टिव वैल्यूज को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम लोग पहले किया था इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज करके। तो सिमिलरली सेम सेम प्रैक्टिस, वाई सेलेक्टिंग द इंडेक्स फंक्शन इट विल आस्क फॉर द अरे, मेरा अरे यहाँ पर है। इसके बाद देन इट विल आस्क फॉर द रो नंबर, एंड रो नंबर विल बी माई दिस वन। लेट्स फिक्स दिस सेट एंड कॉलम। तो कॉलम मेरा चेंज होता रहेगा, तो इसके लिए मैं कुछ वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। एंड देन कॉमा, एंड देन माई फंक्शन इट इज गेट कंप्लीटेड। यहाँ पर जो है कुछ इशू आ रहा है, तो लेट्स इसको हम लोग जो है कॉलम हो गया, कॉलम मैंने कुछ पुट नहीं किया है, लेट्स क्लोज इट डाउन। एंड यू कैन सी 49832 सिलेक्ट कर रहा है, इसके बाद हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। एंड इस कर्सर को वी विल पुट इट हियर। तो मेरा नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो है, बाय यूजिंग द ड्रॉप डाउन फंक्शन, दिस developer tab, this function combo box, we have created this condition here। इसको हम लोग और कर्सर में शिफ्ट कर देते हैं टू प्लेस इट इन दी राइट पोजीशन। इसको ये हमने शिफ्ट कर लिया है, और इस वैल्यू के अंदर जो यहाँ पर है हम लोग इसको नो फिल कर देते हैं, सो दैट ये अपीयर नहीं होगा, किसी को दिखेगा नहीं। और इस सेल को भी हम लोग जो है कलरिंग करना है तो कर लेते हैं। इस फॉर्मेटिंग को भी हम लोग जो है अगर करना चाहें, साइज, प्रॉपर्टीज, डोंट मूव और साइज को रहने देते हैं हम लोग, कोई प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और फिर सिमिलरली यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम लोग जो है कलर हटाई देते हैं, दिस विल नॉट लुक बेटर। प्रॉपर्टीज में जो है व्हाट व्हाट वी कैन डू, हम लोग ये काम करते हैं, इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेट्स लीव इट। तो उसके बाद जो है लेट्स सिमिलरली इसको भी हम लोग जो है हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है यू कैन सी, ये करने के बाद यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, नो फिल कर दिया हमने और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हैं। तो आफ्टर दिस वही विजुअलाइजेशन चार्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड माय नेक्स्ट ऑप्शन इज माय वर्टिकल एक्सिस, मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और यहाँ पर मेरा ये, इसको अभी साइड शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट माय क्राइटेरिया आई विल बी एबल टू सेलेक्ट माय कंडीशन। फिलहाल के लिए मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ फॉर क्रिएटिंग माय विजुअलाइजेशन चार्ट।
तो फॉर क्रिएटिंग माई विजुअलाइजेशन चार्ट, ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए सिलेक्ट कर लिया रेंज, और ये हमारा वर्टिकल एक्सेस के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है। और फिर वैसे ही वो सेम सिमिलर प्रोसेस हमने ये चार्ट क्रिएट किया है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग वगैरह हम लोग जो जैसे पहले किया था वी विल डू सिमिलरली। तो इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ, अदरवाइज फास्ट में वे में कर ले। आई विल डू इट, जस्ट सी हियर हाउ आई एम डूइंग इट। ये मैं इसको गैप पे 100% कर दिया है। और यहाँ पर जो है मैं डाटा विजुलाइजेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा लेवल्स, इसको मैं हटा देता हूँ एक्सेस को। और यहाँ पर जो है मैं इसको विथ इंक्रीज कर देता हूँ। इसको हम लोग जो है एज पर द साइज वी विल पुट इट डाउन बिलो दिस आवर रेंज। और उसके बाद जो है हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसका ये फिल बैकग्राउंड में से फिल हटा देते हैं, और मेरे को कोई बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए। और इस चार्ट में भी मेरे को जो है कोई फिलिंग और कोई यहाँ बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग मोर बेटर। इसको मैं इसी के नीचे प्लेस कर देता हूँ। सो नाउ इसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं। अभी इसको जो है मैंने जो फॉर्म कंट्रोल क्रिएट किया था, इसको हम लोग वहीं अपना एक ओरिजिनल पोजीशन डाल देते हैं। सो नाउ यू कैन सी आई हैव वी हैव चेंज आवर क्राइटेरिया। इस बॉक्स का जो ये यहाँ पर हेडर जो है, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं टॉप में, सो दैट इट विल लिंक विद द चार्ट। और इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, और इसको शिफ्ट कर देते हैं। नाउ इट्स हम लोग बेटर। इसके टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर देते हैं डाटा लेवल्स के। सो लेट्स चेक इट नाउ, थ्रिलर। तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दी अवर विजुअलाइजेशन चार्ट बाय यूजिंग द नेक्स्ट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हम लोग और यूज कर लेते हैं। तो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल how much how we can create our data visualization by using another tips। तो उसके लिए हम लोग जो है डेवलपर टैब में जाएंगे। डेवलपर टैब में जाकर जो है देन वी विल यूज दिस लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करने के बाद लेट्स कीप इट हियर। यहाँ पर हम लोग जो है राइट क्लिक करेंगे बॉक्स को, एंड देन वी विल select our range। तो where is my range? तो my range is here। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको किसी सेल से लिंक कर देते हैं। तो सेल मेरा जो है यहाँ पर है, इस सेल को ले लेते हैं, लेट अस सी फॉर नाउ। इस सेल मैंने ले लिया है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर यू कैन सी व्हाट विल हैपन। अगर मैं 1 करूंगा डॉक्यूमेंट, तो इट विल कम 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से जो है वी हैव क्रिएटेड अवर दिस लिस्ट। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। नहीं तो यहाँ पर जो है हमारे फॉर्म कंट्रोल में व्हाट आई हैव डन, साइज, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये हमने किया था। इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, एज पर माई रिक्वायरमेंट। और इसको साइज को नाउ इट इज लुकिंग मोर बेटर। और इसको हम लोग यहीं पे अभी फिलहाल से रख देते हैं, बाद में इसको हम लोग हाइड कर लेंगे। देन द सिमिलर थिंग जो हमने पहले किया था डाटा विजुलाइजेशन के लिए, यहाँ पर मैं जो है अपना इंडेक्स मैच फंक्शन यूज कर लेता हूँ फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ माई जेंडर। तो इंडेक्स में मेरा जो है यहाँ पर अरे वही है सेम। इसको हम लोग जो है फिक्स कर लेते हैं कॉलम को। माई रो इट इज हेयर, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। एंड देन माई कॉलम इट इज फर्स्ट, यही कॉलम रहेगा मेरा इसका। तो दिस इज नॉट टोटल। इसको मैं चेंज करूंगा तो 4 चेंज हो रहा है। और यहाँ पर फिर सिमिलरली इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करके इसको एक्चुअली मैं ड्रैग कर लेता हूँ। इसको हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए देन
यहाँ पर जो है मैं इसको जो रेंज मैंने जो फिक्स किया है, इसको मुझे फिक्स नहीं करना होगा। इसको आई हैव टू, कॉलम जो फिक्स किया है आई हैव टू रिमूव इट। ये कॉलम फिर हटा रिमूव करने के बाद देन आई कैन ड्रैग इट डाउन। सो नाउ यू कैन सी मेरा ये विजुअलाइजेशन रेंज जो है, डायनेमिक रेंज यहाँ पे बन गया है। बेस्ड ऑन दिस डायनेमिक रेंज आई कैन क्रिएट माय विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन चार्ट डायनेमिक इन द फॉर्म ऑफ सम डायनेमिक वे। वो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। एंड सिमिलरली फॉर क्रिएटिंग दी माई डाटा विजुअलाइजेशन चार्ट, मैं वही चीज़ जो मैंने किया था, तो सिमिलर जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसको हम लोग जो है इस पोजीशन पे फिर पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो डाटा विजुअलाइजेशन भी फिर मैं क्रिएट कर ही देता हूँ जो हमने इतना किया है, तो सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिमिलरली फास्ट वे में मैं कर रहा हूँ। जस्ट हैव ए लुक, ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए सिलेक्ट किया है अपना, और ये हमने वर्टिकल एक्सेस के लिए क्रिएट किया है। इंसर्ट में हमने जाकर सिमिलरली द सेम थिंग्स प्रोसेस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन हियर। ये हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हटा दी है। इसको हमने विजुअलाइजेशन में अपना इसका विड्थ इंक्रीज कर दिया है। और यहाँ पर हम वेरी कलर्स बाय प्रिंट ले लेते हैं। और इसमें जो है मेरे को इस बार का मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए। तो बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके इसको नो लाइन कर देता हूँ। और एक्सेस यहाँ पर डाटा लेबल्स हम लोग ले लेते हैं हर एक बार चार्ट पे। इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। तो मैं हटा देता हूँ इस एक्सेस को, वर्टिकल एक्सेस को। जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डाटा से बस ले लिया है। और इस चार्ट से जो है हम लोग, ये मतलब कोई फिल नहीं चाहिए और कोई लाइन नहीं चाहिए इसका। इसको हम लोग जो है फिर सिमिलरली यहीं पे मैं फिट कर देता हूँ अपना एज पर द रिक्वायरमेंट। और यहाँ भी मेरे को इस कोई फिल और बॉर्डर नहीं चाहिए। और इसमें हेडर को जो है अपना शिफ्ट कर देता हूँ। ये मेरा इस रेंज के ऊपर आ रहा है। और ग्रिड लाइंस में हटा देता हूँ। So friends, you have seen now as of in how many ways we have created our data visualization. इसको जो है मैं यहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ। एक्चुअली इस रो को मैं जो है हाइड कर देता है, जरूरत नहीं है इसको दिखाने के लिए। तो हाइड कर देते हैं। लेट्स, सो फ्रेंड्स, मेरा डाटा विजुअलाइजेशन एक अनदर फॉर्म में क्रिएट हो गया है। बेस्ड ऑन दिस, इसको हम लोग चाहिए तो और हाइड ही कर देते हैं। हाँ, सो नाउ यू कैन सी my data visualization has created by using थ्री डिफरेंट फॉर्म्स। हमने लिस्ट कॉम्बो यूज करके किया अभी। इससे पहले हमने फॉर्म कंट्रोल फंक्शन यूज करके डाटा विजुअलाइजेशन क्रिएट किया डायनामिक वे में। एंड इन द स्टार्टिंग वी हैव क्रिएटेड अवर डाटा बाय यूजिंग द डाटा validation. So I hope we have seen different tips how we can create our data visualization by all these examples. Thank you very much for getting more and more learning videos like this. Please ping me up to keep me motivated, and I will bring more and more such learning videos for you in our next series of videos. Thank you very much for now. Mhm.